Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, today we are going to move to one of the most important topics in English grammar, which forms the soul of English language. And the name of the topic is tenses. So I have mentioned here that tenses are considered as soul of English language. Just like a verb is considered soul of a sentence. Similarly, tenses are soul of English language, and they are considered as soul of English grammar too. What does it mean? It means that unless and until tenses is not clear to you, you cannot deal with your conceptual questions. And talking about higher classes, particularly 10th class, you can lose a huge amount of marks, particularly in section B. That is why we are here to revise this topic. Are you getting me? But I need your full attention and full response so that you can score full marks and you can know the importance of this topic. The first and foremost thing about the topic is that what do we mean by tense and why are they considered as soul of English grammar? Okay, now you can find a number of definitions regarding tense, but I will just make you understand in simplest terms that by tense we mean, so T for tense and T for time. So tense stands for time. Tense means time. Tense indicates time. Okay. So why is it so important? Because whenever we talk, either we talk about the present, or we talk about the past, or we talk about the future. It means that whenever we make a sentence, the sentence falls in some time. It falls in some tense. Are you getting me? It means that we cannot make a sentence without tense. Are you getting me? That's why it is the crux, the soul of English language and English grammar. Now you got it. So tense indicates time. Are you getting me? And when we talk about tense, I know it is very clear to you that there are main three types of tenses. So they are, when we talk about here, it is present time. What comes before present? It is past. And what comes after present? It is future. You got it? So these are main three types. And you also know that then there are 4 subtypes of every tense. Okay, so when we talk about present tense, it has 4 subtypes. The first one is known as present simple or present indefinite. It has 2 names. You got it? Likewise, second tense is present continuous or present progressive. It has also 2 names, present continuous or present progressive. Likewise, past continuous or past progressive, future continuous or future progressive. And third one is present perfect, and number 4 is present perfect continuous. Okay, so likewise past has 4 subtypes. I am going to explain the topic in detail because this is going to be a combined lecture for
both 9th and 10th, and necessarily it will cover also 7th class. So I shall explain each and everything in the simplest terms, in simple words, so that you may understand it properly. Okay. Now past tense likewise has four main subtypes. It has four subtypes. Number first is past simple, past continuous, past perfect continuous. Likewise, future has four subtypes: future simple or indefinite, future continuous or progressive, future perfect, and future perfect continuous. Now, in this lecture, we shall deal with first two subtypes of present, that is present simple and present continuous. So let's begin. The first tense is going to be present simple or indefinite. Okay. So let me tell you that now there are main three tenses, and every tense is having three subtypes. So there are total number of 4 plus 4 plus 4, that is 12 tenses. Okay. Now let's consider that these 12 tenses, they are just like 12 locks. Are you getting me? So how can we unlock a lock? We need a key. So these 12 locks, 12 tenses now need 12 keys. What does that mean? By keys we mean structure. So there are 12 structures or 12 formulas. Okay. Formulas for these 12 tenses. So we are now going to open them one by one. Now let's move tense number first. It is present simple and its structure is subject plus first form of verb plus object. Okay. For example, so I wrote pronouns here: I, we, you, he, she, they. My dears, these pronouns are known as personal pronouns. ठीक है बेटा, इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्सन्स के बदले यूज़ किए जाते हैं. आई, तो मैं एक पर्सन हूँ, मेरे बदले आई यूज़ हुआ. वी, हम पर्सन्स हैं. लाइकवाइज यू, ही, शी एंड दे. ओके. तो इनको आप, जो ये प्रोनाउंस हैं, टेंसेस को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको प्रोनाउंस को समझना होगा. ओके, यू गॉट इट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आई, सो आई मीन्स मैं. ठीक है बेटा, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई इज फर्स्ट पर्सन. और आई सिंगुलर है या प्लूरल, तो इट इज़ सिंगुलर, कि मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं सिंगुलर हूँ. ठीक है बेटा. तो वी की बात हम करेंगे. वी मीन्स हम. बेटा अगर मैं यही कहूँगा वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो वी में मैं भी शामिल हूँ ना. हम मीन्स मैं और आप. ठीक है, तो हम बनते हैं. तो वी जो है बेटा, हम अपने बारे में बात करते हैं, तो ये फिर भी फर्स्ट पर्सन ही रहता है. तो वी इज़ आल्सो फर्स्ट पर्सन. मगर फ़र्क क्या है, वी सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है. याद रखिए, आप प्लूरल कहते हैं, प्लूरल नहीं है, इट इज़ प्लूरल. यू गॉट इट. नाउ यू मीन्स तुम या आप. तो यू क्या है, क्या मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं. हमारे बारे में बात कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं. तो आप के बारे में, जो मेरे सामने होगा, जिससे मैं बात करूँगा, वो बन गया सेकंड पर्सन. अब यू सिंगुलर है या प्लूरल है? शाबाश. अब देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा यू आर ए नाइस स्टूडेंट, यू आर ए नाइस स्टूडेंट.
अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखूँगा, यू आर नाइस स्टूडेंट्स। अब देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा यू आर ए नाइस स्टूडेंट, यू आर नाइस स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट है, सिंगुलर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट है, यू आर ए गुड स्टूडेंट, तो यू इज़ ए गुड स्टूडेंट क्यों नहीं आएगा? हमने दोनों बार आर यूज़ क्यों किया? क्योंकि आर तो हम प्लूरल्स के साथ यूज़ करते हैं ना। तो इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बिकॉज यू इज़ ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल सेंस। याद रखिए, चाहे यू हम एक के साथ यूज़ करेंगे या एक से ज़्यादा लोगों के साथ यूज़ करेंगे, यू को हमेशा बेटा यूज़ करना है प्लूरल सेंस। इट इज़ एन एक्सेप्शन इन इंग्लिश ग्रामर। याद रखिए, यू को आप कभी भी सिंगुलर यूज़ नहीं करेंगे। यू इज़ माई फ्रेंड हम नहीं कह सकते हैं, और गेटिंग मी, यू आर माई फ्रेंड, अगर एक से ज़्यादा होंगे यू आर माई फ्रेंड्स। You got it? So you is second person what? Now is you second person singular or plural? It is second person singular as well as plural. It has both functions. Okay? Now when we talk about he, she and they, he means वो एक लड़का, ठीक है। तो ही के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ना हमारे बारे में बात कर रहे हैं, ना आपके बारे में बात कर रहे हैं, ना तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तो हम किसी तीसरे शख्स की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं है, वो एब्सेंट है, वो यहाँ से थोड़ा दूर है, यहाँ पे नहीं है। तो ही है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात करेंगे दोनों मिलके, तो वो थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। नाउ थर्ड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। शी भी क्या है बेटा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, नाउ व्हाट इज दे? दे यहाँ पे मौजूद है, हम में आप में है नहीं है, तो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पे नहीं है। तो दे है थर्ड पर्सन मगर प्लूरल। याद रखिए, दे थर्ड पर्सन है मगर क्या है? प्लूरल है। तो दीज आर वेरी बेसिक्स। तो आपने कहा हमारा ग्रामर वीक है, तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए बेटा। वेदर योर ग्रामर इज़ वीक और स्ट्रॉन्ग, इट डज़ नॉट मैटर, बट दीज आर जस्ट बेसिक्स आई एम रिमाइंडिंग यू, ठीक है। तो इससे आपको अच्छे से रिमाइंड होगा, मगर यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। ये आपको बहुत काम आएगा आगे वाले क्लासेस में। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर योर 7, 9 और 10th। ओके, तो अच्छे से नोट करेंगे आप। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए प्रोनाउंस जो हैं। तो अब हमने देखा प्रोनाउंस के 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड। तो इन पर्सन्स में भी फिर सिंगुलर और प्लूरल है। कौन सा प्रोनाउन क्या है, इट इज़ गिवन हियर। तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके, नाउ बेटा टॉकिंग अबाउट ए वर्ब, एवरी वर्ब हैज़ 4 फॉर्म्स। हाउ मेनी फॉर्म्स? 4 फॉर्म्स। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ब लिखा, रूट वर्ड है राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है, रिटन थर्ड फॉर्म है और राइटिंग फोर्थ फॉर्म है। मगर इनमें ग्रामर में इन चारों फॉर्म्स का एक स्पेशल नेम है, तो आपको पता भी होगा। तो फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल एंड फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसको हम इन फॉर्म भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यू गॉट इट? तो बेटा हमें क्या करना है, पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। तो लेट मी रिमाइंड यू, राशिद wrote an essay। तो इट इज़ क्लियर टू यू बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बस आई एम रिमाइंडिंग यू। सो राशिद जो है, आप कहेंगे सर राशिद हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है बेटा? तो डूअर, काम करने वाला, ठीक है। इसको आप उर्दू में फाइल कहते हैं। और द पर्सन और थिंग अबाउट होम और विच सेंटेंस इज, ओके, जिसके बारे में सेंटेंस होगा उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो रोट यहाँ पे वर्ब है एंड जिसके लिए तो ये आर्टिकल है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है?
ऑब्जेक्ट को आप उर्दू में क्या कहते हैं? मफऊल कहते हैं, जिस पर काम किया जाए। आर यू गेटिंग मी? ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, जिस पे एक्शन की जाए। तो आई होप नाउ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं कहूँगा ही क्लोज्ड द डोर, ही क्लोज्ड द डोर, तो ही इज सब्जेक्ट, डोर ऑफ एक्शन, एंड डोर इज रिसीवर ऑफ एक्शन, इट इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज नाउ क्लियर टू यू। नाउ व्हाट इज दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब? इट मीन्स दैट बेटा कि जो ये 4 फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट सिंपल में हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। आर यू गेटिंग मी? तो लेट्स मूव टू प्रेजेंट सिंपल अगेन। ऑनेस्टली स्पीकिंग बेटा, अगर हम टेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, इन डिटेल, इट विल टेक, you may be surprised, it will take 1 month. Are you getting me? Because it is very deep topic, but I shall try to be comprehensive. जो हमारे लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह comprehensive होंगे, ठीक है। तो मैं वापस टेंसेस पे आता हूँ। देखो बेटा, जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस है, प्रेजेंट कंक्रीट है, क्या है? प्रेजेंट टेंस कंक्रीट है, यानी हम प्रेजेंट को देखते हैं, जैसे हम इस वक्त क्या कर रहे हैं बेटा, पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट है। इस पास्ट कंक्रीट, ज़रा सोचिए, पास्ट कंक्रीट है तो है, कैसे? हाँ, क्वेश्चन रेज हो चुका होगा ना, कैसे? देखो बेटा कैसे, देखो बेटा, अगर मैं एक बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे इस वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कब बनाया गया? पास्ट में, मगर प्रेजेंट में हम इस पास्ट में जो बनी हुई चीज़ इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट पास्ट इज आल्सो कंक्रीट। हालांकि हम पास्ट में वापस नहीं जा सकते हैं, बल्कि whatever is made in past we can use that in present. Are you getting me? इसका मतलब है जो पास्ट के सैम्पल्स होते हैं वो हम प्रेजेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। यू गॉट इट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर, तो फ्यूचर जो है बेटा क्या कंक्रीट है? फ्यूचर आपने ये सर कल मैं फॉर एग्जांपल असाइनमेंट सबमिट करूँगा, बट यू आर नॉट श्योर आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या कोई आप फ्यूचर प्लान बनाते हैं, बट it may work or it may not work. It means that future is not concrete. Future is based on guess. What does that mean? It means that जो future है, it is based on guess, and future is abstract. You got it? So present and past is concrete, but future is abstract because it is based on guess. तो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ, अंदर यहाँ पे वर्ब है गो, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन, एंड लास्ट वन इज गोइंग। सो वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। नाउ टॉकिंग अबाउट ही एंड शी, याद रखिए बेटा एक रूल है, आई नो इट्स क्लियर टू यू, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग बेटा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स है, क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, प्रेजेंट सिंपल में इनके साथ हम जो वर्ब यूज होगा उस वर्ब को हम ऐड करते हैं एस एंड एस। ओके, तो ही गो प्लस एस गोज टू स्कूल, she goes to school. You got it? And they go to school. तो बस हमने क्या देखा, यहाँ पे लगभग सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे चेंज जो है वो ही है और शी में है, बिकॉज दे आर बोथ थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, तो इनके साथ ऐड होगा एस और एस। यू गॉट इट? तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ये समझा रहा हूँ, अभी मैंने ये नहीं बताया कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, इसे हम प्रेजेंट सिंपल क्यों कहते हैं, इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। आर यू गेटिंग मी? जस्ट पहले स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, स्ट्रक्चर है क्या। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू, अगर हम इसको ट्रांसलेट बेटा करेंगे
क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा इसकी ट्रांसलेशन क्या है, आप नहीं समझ पाएंगे, आप टेंसेस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। नेवर। आई गो टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ। ओके। इसी तरह हम स्कूल जाते हैं, तुम या आप स्कूल जाते हो, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है, वो स्कूल जाते हैं। ओके। तो जो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस होते हैं, इंशाल्लाह आपको ये आगे काम आएंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में, कि वहाँ पे एक पैसेज होती है उर्दू में, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है इंग्लिश में। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, तो इंशाल्लाह इस पर वर्कशीट भी होगा बेटा। जिसके एंड पे ता हूँ ती हूँ आता है, याद रखिए, ता हूँ ती हूँ, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, इट इज़ द सिंबल ऑफ प्रेजेंट सिंपल इन ट्रांसलेशन। ओके। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल। अब मैं आपको ये समझाऊंगा प्रेजेंट सिंपल क्या होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। अब आपको ये कैसे याद होगा बेटा, इस पर ड्रिल करनी है। देखिए, तो आप पहले ऑब्जेक्ट को आप कैंसिल कीजिए, बस यहाँ पे आए। लाइक आई गो, वी गो, यू गो, ही गो, शी गोज, दे गो, इस पर ड्रिल करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई भी वर्ड आपसे पूछूंगा क्लास में, इंशाल्लाह जब मिलेंगे स्कूल में, तो आप यू शुड बी एबल टू आंसर मी। लाइक आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, ही प्ले, शी प्लेज, दे प्ले। ओके। आई वॉक, वी वॉक, यू वॉक, ही वॉक, शी वॉक्स, दे वॉक। ओके। तो अकॉर्डिंगली आपको ड्रिल करनी है। इट मे टेक सम टाइम बट इट इज़ इंशाल्लाह फ्रूटफुल फॉर यू। ओके। नाउ व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल। याद रखिए बेटा, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, इसमें ये हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, आप कब कोई सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। तो आप अब आपके पास व्यापन तो है, मगर उसको यूज़ करना भी आना चाहिए ना आपको। तो आप कैसे यूज़ करेंगे बेटा, वेन एवर वी टॉक अबाउट जनरल एक्शंस। ओके। whenever we talk about universal truths, okay, whenever we talk about daily actions, तो डेली एक्शंस के बदले हम शॉर्ट में लिखेंगे हैबिचुअल एक्शंस, टू बी मोर सूटेबल। हाँ, हैबिचुअल एक्शंस और टाइम टेबल्स भी। हाँ, जब हम टाइम टेबल्स का जिक्र करते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है बेटा जनरल एक्शन। देखिए बेटा, ईट हर कोई करता है ना, whether he is rich or poor, whether he is black or white, whether he is Muslim or Hindu, जो भी होगा, ईट हर कोई करता है, प्ले हर कोई करता है, स्लीप हर कोई करता है, राइट सब कोई हर कोई करता है। तो दीज आर ऑल जनरल एक्शंस, ये जनरली की जाती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ पहले हम ये लेंगे बेटा, जनरल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फूड, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो हर कोई खाना खाता है, ये जनरल एक्शन है। आई ईट फूड, वी ईट फूड, यू ईट फूड, ही ईट्स फूड, शी ईट्स फूड, दे ईट फूड। ओके। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इज आई ईट फूड यूनिवर्सल ट्रूथ? नहीं है। तो ये जनरल एक्शन है। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे द सन राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए बेटा, द सन जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन गया ना, सन। हाँ, राइजेज लिखा हमने, क्यों? दे के बाद आप और एक प्रोनाउन ऐड करेंगे बेटा, इट। दे के बाद आता है, जो भी हमने प्रोनाउन का लिस्ट दिया, लास्ट में इट लिखेंगे। इट मैंने एक्सक्लूड क्यों किया बेटा? इट जो है ना, ये भी एक ग्रामेटिकल पॉइंट है, इसको याद रखिए। इट की यूसेज क्या है? एक तो ये नॉन लिविंग के साथ यूज़ किया जाता है इट, ठीक है। अननोन जेंडर के साथ भी यूज़ किया जाता है, जब जेंडर अननोन हो। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा होता है, बेबी होता है, हम ये नहीं कह सकते ही इज़ ए बेबी, वो शी हो सकता है, या ये नहीं कह सकते शी इज़ ए बेबी, वो ही हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ ए बेबी। या कोई डोर पे नॉक करता है, हम नहीं कि हु इज़ ही, हम कहेंगे हु इज़ इट। आर यू गेटिंग मी? तो अननोन जेंडर के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम इट यूज़ करते हैं।
तो इट के साथ भी बेटा जो ही और शी के साथ होता है वही इट के साथ भी होता है, क्योंकि इट जो है ये थर्ड थिंग सिंगुलर है, तो इट के साथ भी एस और एस ऐड होता है। जैसे यहाँ पे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सो इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। आर यू गेटिंग मी? ये हर कोई एक्सेप्ट करता है। इसी तरह अगर हम टाइम टेबल का जिक्र करेंगे, मैं कहूँगा द ट्रेन कम्स एट 10 AM। ट्रेन का जो रूटीन है ये 10 बजे आती है, तो ये इसका टाइम टेबल है। इसी तरह आवर एग्जामिनेशन बिगनस फ्रॉम 10 नवंबर, और गेटिंग मी बिगनस, हालांकि ये फ्यूचर का जिक्र हो रहा है मगर ये टाइम टेबल है, क्योंकि टाइम टेबल हमेशा फ्यूचर के बारे में होता है। आर गेटिंग मी? इसलिए इसको भी हम इंक्लूड करते हैं कहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल में। तो इनडिफिनिट क्यों है? इट मीन्स दैट देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम, इसमें टाइम का जिक्र नहीं होता। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने 10 AM यहाँ पे आपने दिया, सर ये तो फिक्स टाइम है ना बेटा, 10 बजे ट्रेन आती है, हमेशा 10 बजे आती है। और गेटिंग मी? तो बेटा यहाँ पे जो टाइम हमने दिया ना, याद रखिए ये टाइम टेबल में आता है। किस जोन में आता है? टाइम टेबल में आता है। और गेटिंग मी? मगर अगर हम जनरली बात करते हैं, जनरल एक्शन, क्योंकि ये इंडिफिनिट जनरल के साथ लगता है कि प्रेजेंट सिंपल को हम इंडिफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम जनरली बात करते हैं जनरल एक्शंस का, ठीक है, टाइम टेबल को एक्सक्लूड करके जनरल एक्शंस की जब हम बात करते हैं, आई ईट फूड, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कब खाता हूँ, कैसे खाता हूँ, इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है, तो ये जनरली हम कहते हैं। आर यू गेटिंग मी? हैबिचुअली कहते हैं, तो टाइम इज़ नॉट नेसेसरी हेयर। आर यू गेटिंग मी? तो इट लीव्स इंडेफिनिट द प्लेस और पर्सन या थिंग, तो फूड का हमने जिक्र किया, तो यहाँ पे टाइम जो है इंडेफिनिट टाइम है, इंडेफिनिट टाइम नहीं है। तो दीज आर इट इज़ 4 यूसेजेस। आर यू गेटिंग मी? आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग लेक्चर, तो इंशाल्लाह वी शैल स्टॉप हेयर। आर यू गेटिंग मी? तो एक बात आप याद रखिए, अगर आपको प्रेजेंट सिंपल अच्छे से समझ आएगा तो जो बाकी टेंसेस होंगे प्रेजेंट के वो आपको बहुत जल्द समझ आएंगे। ओके, नाउ आई होप दैट यू विल रिवाइज दिस लेक्चर एंड यू शैल डू वन थिंग, you will make a chart on play. I play, we play, you play, he plays, she plays, they play, ठीक है, I play cricket या whatever you like, तो इसको फिर ट्रांसलेट भी करना है। Are you getting me? So you will make a rough note on verb play. Okay, so it was all about present simple. I will see you in the next lecture. Till then, take care and fi amanallah.